Our next guest for tonight is Priyanka Chaturvedi ji. She is an Indian politician serving as the member of the Parliament Rajya Sabha from Maharashtra and deputy leader of Shiv Sena. Prior to this, she was a member and one of the national spokesperson of Indian National Congress. She has also been a communist for Tehelka, Daily News, and many more. As a trustee of two NGOs, she works to promote children's education, women's empowerment, and health. She also runs a book review blog, which is amongst the top 10 weblogs on books in India. On behalf of Jai Hind People's Movement, I welcome Priyanka Chaturvedi ji for today's session and ask her to share her views with us. Ma'am, Okay, am I fine? Am I audible? yes, ma'am, you're audible. So firstly, thank you so much, Gitanjali ji, for this lovely welcome and lovely introduction to all my work. But just a correction, I was not a communist. I wouldn't call myself a communist. I was a columnist Sorry, for ma'am. some, no, absolutely all right. I would like to also thank Jai Hind People's Movement for inviting me on this platform. And I can clearly see with the kind of interest y'all have garnered, y'all are speaking on the right issues and connecting with people across the world. I would like to thank Dr. Tambe for inviting me here. I would like to thank Taiji. I think she made some very important comments in her opening statement. And also, I'd like to thank Satyajit Tambeji for coordinating this entire event for me. And not just a colleague, he is also one of the brightest young faces of the Congress Party and also heads the Youth Congress in Maharashtra. So before I begin on this issue, my comments on an important issue, which I think concerns not just India, but how Indian women are represented globally, it becomes imperative to focus on two extremely important issues as far as India is concerned, especially जब हम हाथरस जैसी घटना देखते हैं उत्तर प्रदेश से आती है जो दिल को दहला देती है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस परिवार की जो न्याय की लड़ाई है उसमें शासन और प्रशासन सब मिलकर उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं न्याय की बात नहीं हो रही है कानून की बात नहीं हो रही है पर किस तरीके से इस बात को दबा दें दफना दें उसकी बात ज्यादा हो रही है एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ इंडिया अभी हाल ही में एनसीआरबी डेटा आया था वे एनसीआरबी डेटा टेल्स अस that every 16 minutes there is a crime against women. A woman in India is raped. Every hour in this country, a woman faces dowry death. It also says every 4 minutes, a crime is reported against a woman by her husband or someone from her in-laws side. And that is the grim reality of India as we see it. When we talk about empowering our women, empowerment should not be just merely spoken words. It should also be about action on ground. इस बात में सच्चाई ये भी है कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हाल ही में कोविड की वजह से जो देश में अर्थव्यवस्था की तहस नहस हुई है वो एक और गंभीर मुद्दे को हमारे सामने लाता है और वो गंभीर मुद्दा है कि महिलाओं का जो लेबर पार्टिसिपेशन में योगदान रहा है वो निरंतर गिरता आया है और कोविड की वजह से उसमें और गिरावट लाइकली है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बताती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बताती है कि साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे इंडिया की भी हिस्सेदारी है इंडिया एक अहम हिस्सा है उसमें 48% से ज्यादा महिलाओं की लेबर पार्टिसिपेशन में भूमिका कम होगी 23% of India's women are likely to face job losses as compared to men. So when we talk about economic empowerment, when we talk about the economic contribution towards nation building, we are somehow not addressing the most important cause of speaking up for our women. There's another NCRB data which will surprise many, but it is something which needs to be brought about. And that is about housewives being the second largest group in India who are prone to commit suicide.
housewives like Durga Taiji spoke about, they are working 24/7 without taking care of their health, without understanding the amount of contribution they're doing, may not be getting financial benefit out of it, but their contribution, if measured in terms of wages, will be a lot more significant. वो truly जो कहते हैं voiceless हैं महिलाएं देश की, जो परिवार का तो ध्यान रखती हैं पर अपना कहीं ना कहीं खो बैठती हैं, फिर से याद दिलाता है जो हमारी चुनौतियां हैं उसके बारे में। अब महिला सशक्त कैसे हो सकती हैं, ये मुझसे बार बार लोग पूछते हैं कि सशक्त महिलाएं ही सशक्त एक समाज बनाएंगी। और सशक्त महिलाएं कैसे बनेंगी? जब आप उनको अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ाएंगे, आप उनका राजनीति में बढ़ाएंगे। राजनीति में अभी भी देश का जो हमारा आंकड़ा है, हम दुनिया में विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स में 149 नंबर पे हमारा पायदान है। हमसे आगे बहुत सारे देश एशिया के निकल चुके हैं, पाकिस्तान तक निकल चुका है, बांग्लादेश तक निकल चुका है, श्रीलंका तक निकल चुका है, और हम 14% का जो आंकड़ा आता है 2014 के बाद, जब 2019 के चुनाव आते हैं, 12% से हमारा 14% बढ़ता है रिप्रेजेंटेशन, हम उसी में खुश हो जाते हैं। और 33% जो महिलाओं के अधिकारों की रिजर्वेशन की लड़ाई है, उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जब तक महिलाओं को 50%, जैसे डॉक्टर तांबे जी बता रहे थे, 50% आबादी होते हुए भी उनकी आवाज बहुत ही कम सुनाई देती है, उनको पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही कम जगह मिलती है। जो पावर टेबल्स होते हैं, पोजीशंस ऑफ पावर होती हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए, वो जगह नहीं मिल पा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है, ये वो देश है जब अपना संविधान बना रहा था, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं थी, और उन महिलाओं का मानना था कि जब हम महिलाओं को इक्वल सिटीजन्स का दर्जा दे रहे हैं, जो बहुत सारे यूरोपियन नेशंस और यूएस जैसे देशों ने नहीं दिया था, उनको इक्वल राइट टू वोट दे रहे हैं, तो एज अ नेचुरल आउटकम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पुरुष प्रधान देश बनते चले गए। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो उनकी सोच थी, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं कि महिला जितनी सशक्त बनेंगी उतना ही सशक्त हमारा समाज बनेगा, उसको कहीं ना कहीं हम भूल बैठे हैं। क्या देश में सब कुछ महिलाओं के खिलाफ हो रहा है? मैं ये भी नहीं मानती हूँ। आज हमारे देश की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़कर आर्म्ड फोर्सेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन की वर्डिक्ट लेकर आती हैं। हमारी महिलाएं जो हैं पायलट्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश से आती हैं वो भारत से आती हैं। ये हमारी देश की महिलाएं हैं जो अब पार्लियामेंट में लड़ाई 33% की लड़ रही हैं, पर साथ ही साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ झगड़ कर अपना रास्ता बनाकर खुद अपनी काबिलियत पे, अपनी शख्सियत पे जगह बना रही है, एंड इज होल्डिंग governments accountable even when they are in opposition. Their voices are being heard. So I personally feel in our endeavor to ensure that women participate more, we need to have women who are passionate about bringing up other women. We need to make a community of women, a network of women who empower each other, do not disempower each other. There is equal space for everybody. Men need to be equal, I would say, participants in our fight for equality. You'll have made a lot of space. It is time y'all gave us the right amount of space. Women are doing some amazing work in various industries. However, because of pay gap, gender pay parity that exists, lack of career choices that exist, gender bias that exists, it does not give them a serious path towards a better growth trajectory. And this is not just in political spaces, even in various industries. If you look at women who are in positions of power, there would be very few and far between. Middle level management is where we see most women getting stuck till the time of perhaps their retirement or till they drop out of jobs. These are areas we need to concentrate upon. अगर हम सही मायने में अपनी राजनीतिक सोच को पीछे रखकर, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को समझकर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जहां पे हम महिलाओं का भी योगदान लेंगे, मैं मानती हूं आने वाले समय में हम एक इक्वल समाज बना सकते हैं।
और इक्वल समाज की लड़ाई के लिए हम सबको उसमें भागीदारी होनी पड़ेगी। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि महात्मा गांधी जी के इस पर्व पे 191 उनकी बर्थ एनिवर्सरी के समय पे मैं आप लोगों के बीच में आ रही हूँ। और मैं मानती हूँ कि जो उनकी मन में भी विचार थे महिलाओं को लेकर, महिलाओं के फ्रीडम मूवमेंट में उनके पार्टिसिपेशन के जो विचार थे, जहाँ पे उन्होंने उनको इक्वल दर्जा दिया, उसको याद करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सारी वो महिलाएं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है आज़ादी से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण की, मैं उन सबको सलाम करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, एमएलएस की, एमएलसीज की, कॉर्पोरेटर महिलाओं की, जो काउंसलर्स हैं, जो पंचायती लेवल पे काम करती हैं, जिनको 50% तक भी भागीदारी मिली है, वो महिलाओं की हौसला अफजाई करेंगी, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगी और पॉलिसीज में इम्पोर्टेंट आवाज बनकर निकलेंगी। इसी से मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगी और आप सबकी फिर से आभारी हूँ। आप सबने मुझे सुना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, ma'am. थैंक यू।